Good morning, dear students. Once again, welcome to our English period. Okay, so dear students, in previous period we have talked about the koala bear, the amazing animal from the Australian land. First, it was found in the North America, and then it reached to South America, and from South America to Australia. Okay, so there are about 140 kinds of marsupials, and most of them are found in the Australia. We have already studied, and also we have talked about for 18 hours the amazing things about the koala bear, that for almost 18 hours a day it used to sleep. Okay, and what does it eat? So it eats eucalyptus trees leaf. Okay, and those leaves are very poisonous, but yes, because the koala bear loves those leaves and it digests it very easily. Also, we have seen that in the previous phrase, koalas hardly drink any water, and then we have already talked about that sometimes it is seen that in the hot days that these koala bears reach to human beings, and for their purpose, for their need, they have taken some water and other things from the human beings. Let's see what happened and what are the amazing things about the koala bear and their life. Let's talk. So please open page number 22. So dear students, let's start from page number 22. The koala baby is called a Joey. Okay, so Joey is the young one of kangaroo or koala bear. Okay, the koala baby is called a Joey. When it is born, it is hairless and earless. जब कोला कोला बियर का बेबी जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड जोई, एंड व्हेन इट इज़ बॉर्न इट इज़ हेयरलेस एंड ईयरलेस. उसके कान भी नहीं होते एंड बाल भी नहीं होते बदन पर. इट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड. ओके, इट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड. ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ कैरिड बाय इट्स मदर in her pouch for about 6 months. So when the koala baby is there, so it almost lives with its mother for 6 months. Okay, its ears, eyes and fur begin to grow while it remains close to its mother's body. And what happened, dear students, धीरे धीरे उसके इट्स ईयर्स, आइज एंड फर बिगिन टू ग्रो. उसको धीरे धीरे उसके कान, उसके आँखें और उसके बॉडी पर के फर, फर इज द लेयर ऑफ हेयर्स. ओके, एयर्स. सो बिगिन टू ग्रो, बढ़ने लगते हैं जब भी वो अपने मम्मी के पास में बॉडी में ही होता है. ओके, एज वी नो मदर्स हैव द पाउचेस टू लुक आफ्टर देयर बेबी. ओके, जस्ट लाइक कंगारू. एट दिस टाइम अ जोई ओनली ड्रिंक्स मिल्क. और इस दौरान जो बेबी बियर होता है, कोला बियर, इट ड्रिंक्स ओनली मदर्स मिल्क. व्हेन इट फाइनली कम्स आउट इट राइड्स ऑन इट्स मदर्स बैक और क्लिंग ऑन टू हर बेली. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये छोटा कोला बेबी जब बाहर आता है, जब वो चलने लायक हो जाता है, तब अपने मम्मी की पीठ पर बैठता है, या तो कभी उसके पेट को टाइट पकड़कर खेलते रहता है. इट गोज एवरीवेयर विथ हर फॉर ऑलमोस्ट ईयर. और वो पूरे साल भर तक अपने माँ के साथ में ही, जहाँ पर भी मम्मी जाती है, उसकी माँ जाती है, मदर बियर जाती है, ही गोज. देन इट कम्स आउट एंड बिगिन्स टू एक्सप्लोर द एरिया वेयर इट्स मदर लिव्स. एंड देन धीरे धीरे it comes out and begins to explore. Explore means to search out. Okay, the area where its mother lives. और उसकी माँ जहाँ जा रहती है, जिस एरिया में जाती है, उस एरिया को एक्सप्लोर, ढूंढना, सर्च करना चालू कर देता है. इट देन स्टार्ट्स ईटिंग यूकैलिप्टस लीव्स. एंड धीरे धीरे वो यूकैलिप्टस लीव्स भी खाना शुरू कर देता है. ओके, सो व्हाट हैपन, लेट्स सी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कोला बियर. अर्लियर हंटर्स यूज्ड टू किल कोलास, take off their fur and send it to Europe and the United States. The population of koalas has decreased. As cities grow, the eucalyptus trees are cut down.
forests disappear and in their place grow towns and cities. In this way, the home of the koalas is taken over by human beings. Koalas are often attacked by dogs. Sometimes they are killed in traffic accidents. Every year there are less koalas. So dear students, after reading, let's understand line by line. Earlier what used to be happen? Earlier hunter used to kill koalas. पहले के दिनों में जो हंटर्स होते थे, हंटर्स आर द पीपल हु किल illegally to animals. Okay, to kill koalas, take off their fur and send it to Europe and the United States. Okay, so to sell their fur. Okay, so they used to kill koalas for selling in Europe and the United States, and due to that the population of koala has decreased. Decrease means less in number. Okay, कम हो गई. As cities grow, the first reason is that the hunters used to kill koalas, and that's why the population of koalas has decreased. The another reason is that as cities grow, the eucalyptus trees are cut down. जैसे क्योंकि शहरों का बढ़ना शुरू हो गया, शहर तैयार होने लगे और उसके लिए यूकैलिप्टस ट्रीज को जंगलों से काटा गया. एंड फॉरेस्ट डिसअपियर एंड इन देयर प्लेस ग्रो टाउन्स एंड सिटीज. और इस तरीके से फॉरेस्ट, यूकैलिप्टस ट्रीज वाले फॉरेस्ट डिसअपियर, वैनिश्ड होते गए और उसकी जगह पर शहर और बड़े बड़े महानगर स्थापित हुए. इन दिस वे द होम ऑफ द कोलाज इज टेकन ओवर बाय ह्यूमन बींग्स. और इस तरह से, इस प्रकार से जो कोला बियर्स के जो एक नेचुरल होम था उस पर इंसानों ने अतिक्रमण कर लिया. कोलाज आर ऑफन अटैक्ड बाय डॉग्स. ओके, कभी कभी कोलाज पर कुत्तों द्वारा हमला भी किया जाता है. समटाइम्स दे आर किल्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. जब वो रोड पे आते हैं, जंगलों से बाहर आते हैं, रोड पे आते हैं, हाईवे पर आते हैं, तब वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी मारे जाते हैं. एवरी ईयर देयर आर लेस कोलाज. और हर साल इस तरीके से उनकी संख्या कम होती जा रही है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. The Australian government has now put koalas on the list of endangered animals. Okay, dear students, now due to the less numbers of koalas, now the Australian government, okay, they had decided and put these endangered these koalas on the list of endangered animals. Now dear students, what is the meaning of endangered animals? So the meaning of endangered animals is animals that can disappear because not many of their kind are left on the earth. मतलब ऐसे एनिमल जिनके तरीके के एनिमल्स की संख्या दिन ब दिन अर्थ पर घट रही है और उनका अस्तित्व धोखे में है. ओके, खतरे में है. सो कोलाज आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट एंड नाउ the koalas are looked after by the Australian government. They cannot be hunted for their fur. Now the government of Australia has made some rule that nobody hunted the koala bear for their fur. उनकी फर के लिए कोई उनकी हत्या नहीं करेगा. They cannot be kept as pets. even उनको घर में भी एज ए पेट, पालतू जानवर के समान रख नहीं सकते. देयर होम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड एंड आल्सो दे हैव मेड द रेगुलेशंस लॉज दैट देयर होम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स टू सेव प्रोटेक्ट जंगल्स. ओके, वी टू डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स और नाउ टर्न व्हाट वी कैन डू फॉर द कोला बियर्स. सो वी टू कैन प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स. प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, हम भी इन इंडेंजर्ड एनिमल्स को बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते. वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज़ ह्यूमन बींग्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ एनिमल्स. प्यारे दोस्तों, वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज. हमें ये मैसेज फैलाना चाहिए और ये अवेयर करना चाहिए लोगों तक कि ह्यूमन बींग्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द होम्स ऑफ एनिमल्स, ये हम इंसान हैं, मानव जाति हैं जो कि प्राणियों के घरों को तबाह कर रहे. वी मस्ट लेट एनिमल्स लिव पीसफुली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. जो भी एनिमल्स का, पशुओं का नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स अ नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल. सो जिस नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल परिसर में, नेचुरल होम में एनिमल्स रहते हैं, हम इंसानों ने उनको उसी
जगह पर शांतिपूर्वक पीसफुली रहने देना चाहिए। पीपल हु लिसन टू अस विल नो दैट एनिमल्स हैव बीन पुट ऑन टू दिस अर्थ फॉर अ रीज़न। जो लोग हमें समझते, पीपल हु लिसन टू अस, जो हमें समझते हैं और जो हमको सुनेंगे, दे विल नो दैट, उनको पता होगा कि एनिमल्स हैव बीन पुट ऑन टू दिस अर्थ फॉर अ रीज़न, कि इंसानों के साथ साथ इन जानवरों को, इन पशुओं को भी धरती पर किसी कारणवश लाया गया है। एज वी मेक श्योर दैट वी आर कंफर्टेबल, वी शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट एनिमल्स आर अलाउड टू लिव इन देयर होम्स। जिस प्रकार से हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम इस धरती पर अच्छी तरीके से कंफर्टेबली रहे, उसी प्रकार से हमें ये भी श्योर करना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अदर एनिमल्स भी इस धरती पर पीसफुली रह सके अपने घरों में। सो डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट द ऑथर वांटेड टू टेक अ प्लेज एंड wanted to tell that let us protect all God's creatures as we protect ourselves। वो कहना चाहता है कि चलो हम सब मिलकर come together, let's come together to protect all God's creature as we protect ourselves। जिस प्रकार से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से इस ईश्वर ने बनाई हुई सभी सुंदर क्रिएचर्स का हम रक्षा करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इस तरीके से हम कोला बियर्स और अदर एनिमल्स को भी बचाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, द मेन रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस, dear students, we can also save some endangered animals and we should show love and kindness. We should show our kindness and love towards the all types of animals because they are also living beings as we are. Okay, so we should not kill any animals and we should not hate any animals. Okay, love animals, protect animals and protect our jungles. Thank you and have a good day. Read at home, learn well. Okay, see you in the next plate.